عمران خان کو تکالیف دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں جو میرے پاس سٹیٹمنٹ ہے، ایک تو عمران خان صاحب کی بہن نورین خان، انہوں نے عمران خان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جس تکلیف میں عمران خان کو رکھا ہے اس کی مثال پاکستان کی سیاست میں نہیں ملتی، اور نہ روشنی ہے، نہ بجلی ہے، اور نہ ہی صحیح کھانا دیا جا رہا ہے، صحیح پانی دیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو بہت پریشان کیا جا رہا ہے، ان کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے، ان کی بہنوں کے بقول۔ عمران خان صاحب کے ایک دوست بھی ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں، ہم نے ان سے کافی سیکھا بھی، ہارون الرشید صاحب جو ہیں بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور پرانے لکھاڑیوں میں سے ایک ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی توہین کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان کو بدبودار پانی دیا جا رہا ہے، خراب کھانا دیا جا رہا ہے، عمران خان کا وزن کم ہو رہا ہے۔ کیا یہ کوئی انسانیت ہے؟ یعنی ایک طرف پارٹی میں لڑائیاں چل رہی ہیں کہ سرمایہ دار کو لانا ہے یا نہیں لانا، دوسری طرف پارٹی کے لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اس پہ کوئی آواز اٹھا رہا ہے یا اس پہ کوئی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہی کوئی بات ہو رہی ہو۔ پاکستان تحریک انصاف نے کیا اس کے اوپر کوئی سیاپا کیا؟ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیس کا معاملہ جعلی تھا، ساری دنیا جانتی ہے جعلی تھا، مذاق ہی بن گیا۔ نواز شریف صاحب کے جعلی پلیٹلیس گرے تھے تو ہر 10 منٹ کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی تھی پی ایم ایل این کی، ہر 5 منٹ کے بعد ایک ٹویٹ آتا تھا، ہر تھوڑی دیر کے بعد میڈیا کے اوپر پھٹے چلتے تھے، ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ بریکنگز آ رہی ہوتی تھی سوشل میڈیا پہ۔ یہاں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن ان کی پارٹی اس کے اوپر کوئی بھی لائبل بنانے میں یا بات کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ ناظرین، ایک سب سے پہلے تو وہ خبر لے لیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ان کے وکلا یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو اگر آج بیل مل جاتی ہے، اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر یہ بیل مل جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ آج رہا ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ جس کا خدشہ تھا، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو یا عمران خان کے دشمنوں کو کچھ بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈوگر صاحب کسی بھی لیول تک جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کو سرو کرنے کے لیے، ایسا دکھائی دیتا ہے۔ ہوا یہ کہ جب عمران خان صاحب کے کیس کی سماعت ہوئی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ باہر کرفیو لگا دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسا لگتا ہے کہ مارشل لا لگ گیا، اور باہر اضافی نفری پولیس کی تعینات، خاردار تارے اور بڑا بندوبست کیا گیا۔ صحافیوں کو اور وکلا کو بھی اندر جانے سے روکا جا رہا تھا۔ بہرحال کچھ صحافی جو اندر گئے، ان میں سمیع ابراہیم صاحب تھے اور دیگر کچھ اور صحافی تھے، وہ وہاں پہ اپنا ویلاگ ریکارڈ کر رہے تھے۔ جب وہ اندر اپنی خبریں دینے میں مصروف تھے تو عملہ آ گیا اور سیکیورٹی والوں نے آ کر انہیں کہا کہ جناب آپ یہاں پہ ریکارڈنگ نہیں کر سکتے۔ اب یہ عدالت کے باہر والا ایریا ہے، احاطے کے تو اندر ہے، سیکیورٹی سے اندر ہے، لیکن یہ عدالت کا وہ ایریا ہے جہاں پہ نارملی رپورٹرز کھڑے ہو کر اکثر بات چیت کرتے ہیں، اور یہ ایک روٹین ہے۔ وہاں پہ انہیں کہہ دیا گیا جی آپ یہاں پہ کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ جی ایس پی صاحب کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا جی ایس پی صاحب تو نہیں، یہاں پہ تو عدالت ہے، تو یہاں تو جج صاحب کا حکم ہوگا، جج صاحب نے کہہ دیا یہاں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو ایک عجیب مارشل لا لگا دیا گیا۔ اسی ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں، انہیں اسی احاطہ عدالت سے جبری طور پہ اغوا کیا جا سکتا ہے، رینجرز والے آ کے وہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن میڈیا یہاں پہ کوریج نہیں کر سکتا۔ یہ مارشل لا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہوا یہ جب سماعت شروع ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کو بڑی امیدیں تھی، تو تحریک انصاف کو لگتا تھا وہ بات آج بن جائے گی، لیکن پتا چلا کہ جی پروسیکیوٹر اب بیمار ہے، اور پروسیکیوٹر جو بیمار ہے، نہ اس نے کوئی میڈیکل رپورٹ بھیجی، نہ کوئی اور چیز بھیجی، بس اچانک بتا دیا جی پروسیکیوٹر بیمار ہے اور وہ نہیں آ سکتا۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ بیمار ہو تو جج ایک آدھے دن کی 2 دن کی تاریخ دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی کل آ کے پیش ہو جائیں، نہیں تو اپنی میڈیکل رپورٹ لے کر آئے، نہیں تو پھر آپ ان کی جگہ کسی اور کو بولے وہ پیش ہو جائے۔ سرکاری ہے نا، تو سرکار کا کام نہیں رکتا ہوتا ہے، ایک پروسیکیوٹر بیمار ہے دوسرا آ جاتا ہے، لیکن پتا چلا جناب کہ پروسیکیوٹر بیمار ہے، اور اس کے بعد اس بیماری کی بنیاد پہ جج صاحب نے کہا جی آج تو سماعت نہیں ہو سکتی۔ تو ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں، مشورہ کر کے 5 منٹ میں آپ کو بتاتے ہیں اب کرنا کیا، اگلی تاریخ کون سی ہے۔ تو وہاں جو رپورٹر موجود تھے، باقی سب کو لگا کہ 1-2 دن کی تاریخ دے دیں گے جج صاحب، بہت ہی کوئی گیم ڈال دی تو 3-4 دن کی 5 دن کی دے دیں گے۔ لیکن جسٹس ڈوگر صاحب اندر گئے اور چیمبر میں جانے کے بعد جب تاریخ دی، پہلے یہ کیس 8-9 مہینے کے بعد لگا ہے، 8-9 ماہ کے بعد لگنے والے کیس کو ایک مرتبہ پھر ایک لمبی تاریخ دے دی گئی 3 ہفتوں کی۔ یہ ہے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں انصاف کی صورتحال۔ اگر کوئی ریٹائرڈ جرنیل آ جائے نا تو 24 گھنٹوں میں آن ڈیمانڈ، یعنی من پسند فیصلہ انصاف کی صورت میں یہ عدالت مہیا کر دیتی ہے۔ عدلیہ ایسا لگتا ہے کہ دکان کی طرح کام کر رہی ہے۔
जहां पे मुनाफा देखा जाता है, जहां नफा और नुकसान देखा जाता है कि जनाब जिस चीज में नफा है वो कर दो, जिसमें नुकसान होता है वो ना करो, और एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी के साथ जजेस ऐसा लगता है काम कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है ये बात करना, लेकिन ये बात हो रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान साहब के ऊपर देखिए ना, एक और मामला भी है। ये सिर्फ एक केस नहीं है। जो तोशा खाना में इमरान खान साहब की बरीयत की दरखास्तें हैं, और अगला केस कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा अल कादर वाला, जो लग जाएगा इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में, और फिर उसके अंदर इमरान खान साहब को बेल दे दी जाएगी। लिहाजा इमरान खान साहब को अंदर रखने का पूरा बंदोबस्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है। इमरान खान साहब की जो वीडियो लिंक पे समाअत होती है ना, उस हवाले से भी एक डेवलपमेंट है मेरे पास। अब ये देखें आपके हालात कहां पहुंच गए हैं, और ये कह कौन रहा है, ये सलमान अकरम राजा साहब बता रहे हैं कि जनाब हमारे साथ हो क्या रहा है। वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब की जो समाअत हो रही थी, उसके खिलाफ एक दरखास्त दायर कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वकला ने। अब वो समाअत होनी थी। अब जी समाअत के लिए वो कहते हैं जी हम वहां पे पहुंचे, और लतीफ खोसा साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने, इन्होंने सीनियर जज से मुलाकात की कि जनाब हमारी समाअत क्यों नहीं हो रही। तो एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाया गया, उसने आकर बताया कि जनाब फाइल गुम हो गई, और जज साहब ने कहा जब तक फाइल नहीं मिलती तब तक समाअत नहीं हो सकती। हमें इस तरह की सूरत हाल का सामना है। यानी आप अंदाजा करें कि कहीं पे प्रोसिक्यूटर पे मार हो जाता है, कहीं पे फाइल गुम हो जाती है, कभी जज पे मार हो जाता है, कभी जज छुट्टी पे चला जाता है। अगर इमरान खान के ट्रायल को तेज चलाना हो और इमरान खान जेल से बाहर हो तो रोजाना की बुनियाद पर अदालतें बुलाती हैं, लेकिन अगर इमरान खान साहब के मामलात को लटकाना हो तो ये सारे काम भी हो जाते हैं। कभी रात को 12-12 बजे तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे केसेस चलाए जाते हैं, जेल के अंदर ट्रायल किए जाते हैं, और कभी जजेस 6-6 महीने 8-8 महीने केस सुनने के लिए मुकर्रर नहीं करते। ये इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए एक साजिश के तौर पे पूरा निजाम काम कर रहा है, और हम ये होते हुए देख रहे हैं। ये तारीख का हिस्सा बन रहा है, और अदलिया की तारीख मसख हो रही है। इस पे जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस वकला की होनी थी सुबह, वहां पे बड़ी पुलिस भेज दी गई, और वहां पे भी बड़ा दबाव बनाया गया जनाब की ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो है वो उसको सबोटाज किया जाए। लेकिन फिर वकला बैठे, ये सीनियर तरीन वकला है, इनमें ज्यादातर वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर भी रह चुके हैं, जो जर्नलिस्ट कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को। सीनियर तरीन सहाफी वो भी वहां मौजूद थे, सदीक जान साहब थे, मुतीउल्लाह जान साहब थे, बाकी साकिब बशीर साहब गालिबन, और बाकी जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो यहां पे मौजूद थे। इन सहाफियों ने भी वहां पे बातचीत की। इस गोल में इस कॉन्फ्रेंस से सहाफियों ने भी खिताब किया, क्योंकि वो अदलिया को कवर करते चले आ रहे हैं और वो इसका एक हिस्सा है। तो उन्होंने भी अपनी बातचीत की। इसमें 2-3 चीजें ना सदीक जान ने बड़ी जबरदस्त की। इमरान खान साहब की हुकूमत गिरती है अप्रैल के आगाज में 2022 में। उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई 12% थी, 12% महंगाई थी, और उसके रीजन बहुत सारे मल्टीपल थे। इमरान खान को 3 साल की हुकूमत मिली पाकिस्तान में, जिनमें से 1.5 साल से ज्यादा कोरोना वायरस रहा, लेकिन इसके बावजूद वो माशी तरक्की को 6% तक एवरेज ले गया। 2 साल लगातार मुआशी तरक्की 6% तक पाकिस्तान की चलती रही। ये इमरान खान का बहुत बड़ा कारनामा था। पाकिस्तान में खुशहाली आ रही थी। पाकिस्तान का किसान बड़े लंबे अरसे के बाद खुश था, पाकिस्तान के ताजिर खुश थे, पाकिस्तान की जितने भी इंडस्ट्री वाले लोग हैं, जितने भी लोग फैक्ट्रियां लगाते हैं, खास तौर पे जो आपकी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, वो बहुत खुश थे। वहां पे तो अब कारकुन नहीं मिल रहे थे काम करने के लिए, इतना ज्यादा काम पाकिस्तान को मिल रहा था। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की रिकॉर्ड बढ़ रही थी, आईटी सेक्टर में पाकिस्तान ऊपर जा रहा था, बेशुमार और चीजें हैं, रोजगार लोगों को मिल रहा था। ये सारी चीजें इमरान खान के दौर में हो रही थी। फिर अप्रैल के आगाज में आपने जनरल बाजवा और जनरल नदीम अंजुम और ये सारी फौज के साथ मिलकर आपने इमरान खान साहब का तख्ता उलट दिया, और फिर 2 नंबरी करके इमरान खान साहब के बंदे तोड़कर हॉर्स ट्रेडिंग करके आप अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। तो मियां साहब जब आपने अपनी हुकूमत बनाई तो उस वक्त इमरान खान साहब जो महंगाई छोड़कर गए थे वो 12% थी। डॉलर की कीमत लगभग 180 रुपए फी डॉलर था, और जो अब पहुंच गया तकरीबन 350 रुपए, या इससे भी शायद ऊपर चला जाता है, बादों का 300 से भी क्रॉस कर गया था। पेट्रोल वो 150 रुपए का छोड़ के गया था, आज 350 रुपए है। तो इमरान खान के बाद तो आपने तबाही फेरी है। बिजली की कीमत कई गुना बढ़ा दी, गैस की कीमत तो बढ़ाते बढ़ाते तबाही फेर दी आपने। हर चीज की कीमत पाकिस्तान में आपने कई गुना बढ़ाई है। 16 रुपए वाला यूनिट पाकिस्तान में 50 रुपए का मिलता रहा, ये आप लोगों ने किया है। और जो गैस की कीमत है वो कई 100% आप लोगों ने बढ़ा दी है, और अभी फिर बढ़ाई है दोबारा से गैस की कीमत। तो मियां साहब ये जो आपका
दावा है कि 39% पर महंगाई इमरान खान लेकर गया। तो ये जरा आप डाटा देखिए, 39% पे जो महंगाई गई है, ये गई है मई 2023 में। उस वक्त हुकूमत किसकी थी? 9 मई हुआ था, याद है आपको? मई का महीना कितना बुरा था पाकिस्तान के लिए, जब महंगाई जो है ये अप्रैल मई जून ये वो वाले महीने हैं जब महंगाई पाकिस्तान में बढ़ते बढ़ते 39% तक पहुंच गई थी। और इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम कौन था? शहबाज शरीफ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वजीर खजाना कौन था जिसके जरिए से निजाम चलाया जा रहा था? इसाक डार। और इस वक्त पाकिस्तान के निजाम को कंट्रोल कौन कर रहा था? शहबाज शरीफ और इसाक डार, जबकि पीपल्स पार्टी इनकी साथी थी। तो मियां साहब फिर आपने झूठ बोला और आपका झूठ पकड़ा गया मौके पर ही। मियां साहब पर्ची लेके पढ़ते रहे और अजीब अजीब बातें करते रहे। यहां मियां साहब ने एक और बात की कि इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं था, बल्कि उसको लाने वाले ज्यादा बड़े मुजरिम थे। अब जरा देखिए इमरान खान को लाया कौन? इमरान खान को तो पब्लिक लेकर आई थी। इमरान खान को तो बहुत वोट पड़ा था 2018 के इलेक्शन में, और ये सारी दुनिया जानती है। ये जरूर है कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए, उनसे कुछ फायदा उठाया और अपनी हुकूमत बनाने में उनसे मदद ली, लेकिन हुकूमत तो बन इमरान खान की रही थी, आपकी तो बन ही नहीं रही थी। मियां साहब आपका तो बयानिया ही नहीं बिक रहा था। सारे के सारे जितने भी सर्वे थे वो ये कह रहे थे कि इमरान खान ये इलेक्शन जीत जाएगा। ये सबको पता था कि इमरान खान ने इलेक्शन जीतना है और वो इलेक्शन जीत गया। धांधली तो हुई 2024 के इलेक्शन में, जो पाकिस्तान की तारीख की खौफनाक तरीन धांधली है। लेकिन मियां साहब अब डाल रहे हैं जजों पे, जर्नैलों पे कि जनाब ये इमरान खान को लेकर आए थे, वो बड़े मुजरिम थे। ये नवाज शरीफ कह रहा है। अब जरा मैं बताता हूं, सन 1982 में मियां साहब आप लाहौर की गलियों में फिरते थे और आपको गवर्नर हाउस बुलाकर सूबाई वजारतें किसने दी थी? मुजरिम तो वो भी है, उस मुजरिम को कौन पकड़ेगा? फिर 1985 में गैर जमाती सिलेक्शन से नवाज शरीफ को वजीर आला पंजाब किसने बनाया? मियां साहब, उनको भी पकड़ना चाहिए। गवर्नर हाउस आपको जर्नैलों ने बुलाया था ना मियां साहब, जर्नैलों ने बुला के, जनरल जिलानी ने उसकी गोद में आप बैठ गए, आपके वालिद साहब ने आपको उन्हें दे दिया कि जनाब ये बच्चा आप गोद ले लें। आपको गोद ले लिया जर्नैलों ने और आपको मुख्तलिफ वजारतें दे दी। उसके बाद मियां साहब उन्होंने आपको जनाब गैर जमाती इलेक्शन करवा के वजीर आला पंजाब बना दिया। और फिर इमरान खान की हुकूमत को जिस तरह गिराया गया, इसकी गवाही फजल रहमान देते हैं, इसकी गवाही ANP के लोग बोल चुके, इसकी गवाही हर वो आदमी बोल चुका है जो इस गंदे खेल का हिस्सा था। सब लोग अब बताते रहते हैं कि जनाब फलाने ये किया, बल्कि अब तो मिफ्ता इस्माइल भी बोलते हैं, मोहम्मद जुबैर बोलते हैं जो इसका हिस्सा थे, बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी भी बात करते हैं जो साबिक वजीर आजम है, कि कैसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक खेल खेला और वो खेल खेलकर इमरान खान साहब का हुकूमत गिराया गया। और इसके अंदर सबसे घटिया और गंदा रोल आपके खानदान ने और जरदारी खानदान ने मिलकर प्ले किया। तो मियां साहब इन सारों का क्या करना है? ये जो हुकूमत जनरल बाजवा ने गिराई थी नदीम अंजुम के साथ मिलकर, इन दोनों का क्या करना है? मियां साहब आप यानी मुल्क के ऊपर 40 साल तक पीपल्स पार्टी और आपने हुक्मरानी की है और आज भी आप लोगों की हुक्मरानी है। आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। बाकी पाकिस्तान के लगभग 40 साल पाकिस्तान के डिक्टेटर खा गए, उनका भी कोई कसूर नहीं है। कसूर किसका है? उस इमरान खान का जो 3 साल के लिए आया, जिसमें 1.5 साल तक एक बदतरीन कोरोना वायरस रहा और 2 साल उसने पाकिस्तान की मईशत को तारीख के अंदर बेहतरीन सतह के ऊपर रखा। तो मियां साहब ये तो इमरान खान के तो लोगों को पैर धो के पीने चाहिए। जिस तरह का हुक्मरानी आपने किया पाकिस्तान में, जैसी तबाही आपने फेरी पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में करप्शन और लूटमार का आप लोगों ने बाजार गर्म किया मियां साहब, इस तरह तो इमरान खान आप लोगों के सामने बहुत बड़ा फरिश्ता है। अब नाजरीन यहां पे एक और चीज देखें कि 26 नवंबर के पेश नजर मियां नवाज शरीफ को लॉन्च किया गया ताकि जो है ना वो तवज्जो हटाई जा सके। रोजाना एक नया कट्टा खोल देते हैं जब तक कि आसिम मुनीर साहब का मसला हल नहीं हो जाता, और इस दफा इतना बड़ा कट्टा खोल दिया है कि हर तरफ झूठ और वबा फैल गई है। मियां साहब कम से कम आप अपने हलके के फॉर्म 45 देख लें निकाल के एक दफा।